Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Amin classes. Let's discuss about Ohm's law. Let's get started. Statement. Ohm's law. It states that at constant temperature, Ohm's law states that at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference or voltage applied across the ends of a conductor. So देखो बेटा, ये जो सर्किट है इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें मैंने बैटरी लगाई है, स्विच प्लग की, वॉट एवर यू से, दिस इज एमीटर, दिस इज कंडक्टर, दिस इज वोल्टीमीटर एंड these are the connecting wires. Ammeter, am stands for ampere. Meter means you can say to measure. To measure ampere means to measure current. Ammeter is a device which is used to measure current, and here it's voltmeter. Volt stands for potential difference or simply voltage. Volt stands for voltage, meter means to measure. Voltmeter is a device which is used to measure voltage across the ends of the conductor. Here the battery is connected, the switch is connected, ammeter is connected, voltmeter connected, and these all are connected by connecting wires. So अब क्या देखना है, ये जो बैटरी की वोल्टेज होगी, ये कौन मेजर करेगा? वोल्टमीटर. जब मैं स्विच को ऑन करूं तो करंट जाएगी कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. करंट ऐसे जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. जब करंट जाएगी तो करंट को मेजर कौन करेगा? एमीटर. एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर करंट. एमीटर इस करंट को मेजर करेगा कितनी करंट है, और जो बैटरी की पोटेंशियल है और जो बैटरी की वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो कौन मेजर करेगा? वोल्टमीटर. वोल्टमीटर मेजर्स द voltage of battery, ammeter measures the current flowing through the circuit. Now coming back to Ohm's law, it states that at constant temperature, बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ये पहले ही बोलता है at constant temperature. जिस टेम्परेचर पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो कांस्टेंट रहना चाहिए. It states that at constant temperature, the current flowing through a conductor, the current is flowing from positive terminal to negative terminal. The current flowing through a conductor, जो करंट कंडक्टर में जा रही है यहां से लेके यहां तक, the current flowing through a conductor is directly proportional. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? to the potential difference और voltage. potential difference को voltage भी कहते हैं. voltage applied across the ends. Simply V, voltage applied across the conductor is directly proportional to current flowing through the circuit. अब पहले हमें देखना है, ये स्टेटमेंट है, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है. हमें देखना है व्हाट्स करंट. करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. चार्ज डिवाइड बाय टाइम. करंट डिनोटेड बाय कैपिटल I is equal to charge denoted by capital Q or simply Q divided by time T. Current is Q divided by T. Current is defined as charge divided by time, but here the charge flows. Current is defined as charge, flow of charge. Current is defined as flow of charge divided by time, means per unit time. per unit time में कितनी चार्ज फ्लो हो रही है उसको हम करंट बोलते हैं. रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, रेट विथ रेस्पेक्ट टाइम. करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम. अब हम देखेंगे नाउ वोल्टेज. व्हाट इज वोल्टेज? करंट आया समझ, करंट क्या होता है. अब वोल्टेज देखो, V वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन per unit charge. V is voltage or potential difference or electric potential. V is equal to work done, W, divided by charge. Potential difference is equal to work done per unit charge. How much work is required per unit charge? That's potential difference or voltage. Potential difference or voltage is defined as work done in bringing a charge from one point to another point. That's potential difference or voltage. Now statement V is directly proportional to I, Ohm's law. But at constant
टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। V, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसके लिए हम इज इक्वल टू लिखेंगे और एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं आर आई, और V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, V is equal to IR. Voltage is equal to I into R. This R is constant. This R is proportionality constant, and that proportionality constant is known as resistance of a conductor. Resistance. V proportionality के बदले हम is equal to लिखेंगे, और इसके लिए एक constant आता है, constant into I, and that constant is known as resistance, Ri. This is Ohm's law. V is directly proportional to I, voltage directly proportional to I है। क्यों? अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर 200 वोल्ट बैटरी है, तो फॉर एग्जांपल करंट कुछ होगा। जब हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट बैटरी, 600 वोल्ट बैटरी, तो डेफिनेटली करंट इंक्रीज होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज करेंगे, करंट डिक्रीज होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब ये इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा। अगर हम बैटरी की पोटेंशियल वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, तो करंट भी इंक्रीज होते जाएगी। तो अब हम, ये सर्किट है, एमीटर, कंडक्टर, वोल्ट मीटर, स्विच, बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स। अब आप काम करो, draw the graph. This is x axis, this is y axis, voltage, current. We will draw graph, हम ग्राफ डालेंगे करंट और वोल्टेज के दरमियान। x एक्सिस जहां से x एक्सिस है वहां से हमने करंट डाला, और जहां से वोल्टेज है, y एक्सिस है, वहां से हमने वोल्टेज डाला। वोल्टेज जहां से वोल्टेज है, जहां से y एक्सिस है, वहां से हमने वोल्टेज डाला। मींस y को हम लिख सकते, v को हम लिख सकते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। करंट कहां से? x एक्सिस। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये जो इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, x and y, two variables x and y, and these two variables are linearly connected to each other. That is, अगर x increase होगा, y भी increase होगा, x decrease होगा, y भी decrease होगा। This is linear equation. This is linear equation in two variables. That is, y is equal to some constant. That constant is r and x. That is, y is simply equal to x. Constant into x. That is, अगर हम ग्राफ डालेंगे तो इसका ग्राफ सीधे आएगा ऐसे, straight line passing through the origin. यहां से यहां तक, एज्यूम यहां से यहां तक ओम्स लॉ अप्लाई करता है, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है? x, और यहां से यहां तक क्या है? y। यहां से यहां तक v इज इक्वल टू y, और यहां से यहां तक x इज इक्वल टू I। अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, and that perpendicular equal to voltage is equal to y, and this is base, and this base is equal to x is equal to current I, and that is perpendicular. This is the theta angle made by this graph with the x axis. अगर हम इस ट्रायंगल पे देखेंगे तो हम V is directly proportional to I, V is equal to Ri, or you can write it as Ri is equal to V. You can write it as R is equal to V divided by I. This resistance, this proportionality constant, this resistance is equal to voltage divided by current. अगर हम इस ट्रायंगल से देखेंगे, voltage divided by current, voltage divided by current is equal, voltage क्या है? voltage perpendicular है, perpendicular divided by, ये जो करंट है, करंट क्या है? बेस, perpendicular by base, that is perpendicular by base in right angle triangle is tan theta. That is, this is tan theta. Voltage V divided by I is equal to R, and that R is equal to voltage divided by current, perpendicular divided by base, tan theta.
V is directly proportional to I. V is equal to IR. R is equal to V divided by I. V is perpendicular divided by I. I is base. That is R is equal to that resistance, that proportionality constant resistance is equal to perpendicular divided by base, and that perpendicular by base is tan theta. Tan theta, and this tan theta is known as slope of the graph, yes, or simply slope. That is the resistance is equal to slope. Resistance is equal to slope and slope is tan theta. So जब भी हमें किसी भी कंडक्टर का ग्राफ दिया होगा वोल्टेज और करंट, हमें स्लोप देखना है. स्लोप जितना भी हमारा स्लोप आएगा वो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है. This is x axis current, this is y axis voltage. अगर हमारे पास तीन कंडक्टर्स हैं, this is first conductor A, this is B, this is C. हमारे पास तीन कंडक्टर हैं, this is conductor C, this is conductor B and this is conductor A. मैंने ग्राफ ड्रा किया वोल्टेज एंड करंट x axis and y axis. X axis current, y axis voltage, and there are three conductors, conductor A, conductor B and conductor C. कंडक्टर A का थीटा कम है और करंट C का एंगल ज्यादा है, तो कंडक्टर A tan theta of conductor A is less than tan theta of conductor B is less than tan theta of conductor C. तो सबसे ज्यादा स्लोप किस कंडक्टर का होगा? कंडक्टर C is having maximum angle and definitely maximum slope, and conductor A is having least angle and definitely least slope. कंडक्टर C का slope tan theta सबसे ज्यादा है. It means resistance of conductor C is greater than resistance of conductor B is greater than resistance of conductor A. और जो कंडक्टर A है ये गुड कंडक्टर होगा, एंड जो कंडक्टर सी है इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ये बैड कंडक्टर होगा. जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप, जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप, और जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा टेंजेंट ऑफ एंगल, और जितना ज्यादा टेंजेंट ऑफ एंगल उतना ज्यादा रेजिस्टेंस. एंड दिस इज द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट, अपोजिशन. किसको अपोजिशन? करंट को. अगर सर्किट में से करंट जा रही है तो वो जो कंडक्टर है उसमें कितनी रुकावट होगी करंट को, उसमें कितनी अपोजिशन होगी, वो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस R. रेजिस्टेंस R इज स्लोप. रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू tan थीटा एंड दैट tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, एंड दैट स्लोप डिपेंड्स अपॉन द थीटा. जितना कम थीटा उतना कम स्लोप, जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा स्लोप. और अगर हम इस ग्राफ में देखेंगे कंडक्टर A, B, C सबसे कम एंगल ये बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो सबसे कम एंगल इसका होगा, सबसे कम स्लोप इसका होगा, सबसे कम रेजिस्टेंस इसकी होगी. सबसे ज्यादा एंगल ये बना रहा है, सबसे ज्यादा स्लोप इसका होगा, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसकी होगी. तो ये गुड कंडक्टर होगा और ये बैड कंडक्टर होगा. तो अगर यहां से ओम्स लॉ स्टार्ट होता है, असल में यहां से ओम्स लॉ आप देखोगे अच्छे से, ये करंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग करंट है, वाई एक्सिस के अलोंग वोल्टेज है. दिस इज वोल्टेज अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज करंट अलोंग एक्स एक्सिस. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होना है, टेम्परेचर किसी भी हाल में चेंज नहीं होना है. वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितनी वोल्टेज होगी उतनी ज्यादा करंट होगी, जितनी कम वोल्टेज होगी उतनी कम करंट होगी. V, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हम इक्वलिटी की साइन लगाते हैं, और इक्वलिटी साइन के साथ हम एक कांस्टेंट लगाते हैं. इट मींस V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू करंट, एंड दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर Ri, और Ri इज इक्वल टू V, or R is equal to V divided by I. This is the graph because V is directly proportional to I. V directly proportional to I means if V is y axis, V is
directly proportional to I. V is along the y-axis, means y is directly proportional to x, means y is equal to constant into x. जब भी लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लीनियर आता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. x 0 होगा, y भी 0 होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. यहां से यहां तक अगर ओम्स लॉ अप्लाई करता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है. यहां से यहां परपेंडिकुलर है, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर है y वोल्टेज, यहां से यहां तक. और जो बेस है यहां से यहां तक बेस मींस x मींस करंट. जब आप इस, और ये एंगल थीटा है, और जब आप इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज इक्वल tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और tan थीटा का दूसरा नाम, tan थीटा को ही हम स्लोप बोलते हैं. स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर कितना है, v डिवाइड बाय बेस कितनी है, i. दैट मींस v by i, v is equal to perpendicular divided by I equal to base. That perpendicular by base, that's r equal to tan of theta, और tan theta is equal to slope. tan theta को हम स्लोप बोलते हैं. मींस जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर की, रेजिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो हमें थीटा निकालना है. ये जो ग्राफ है थीटा कितना है, जितना थीटा, अगर थीटा ज्यादा होगा tan थीटा भी ज्यादा होगा, अगर थीटा कम होगा tan थीटा भी कम होगा. और अगर ये एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है, इसका कम एंगल है, इसका ज्यादा एंगल है, इसका कम स्लोप होगा, इसका ज्यादा स्लोप होगा. इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस लेस होगी क्योंकि एंगल कम है. इसकी रेजिस्टेंस, ये जो कंडक्टर है इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी, इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी क्योंकि एंगल ज्यादा है, tan थीटा ज्यादा है. गो, अब आपको याद क्या रखना है, जो ये जो रेजिस्टेंस है ये स्लोप है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये tan थीटा के बराबर होता है. ये जो कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, आई आर इज इक्वल टू वी, आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आई, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट. ये जो रेजिस्टेंस होता है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, आर डिपेंड्स अपॉन किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर वोल्टेज इंक्रीज हो जाए तो एट द सेम टाइम करंट भी इंक्रीज होगी, तो जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट आएगा. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. मतलब अगर आप बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो V इंक्रीज होगा, R इंक्रीज होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जब V इंक्रीज होता है I भी इंक्रीज होता है, V भी इंक्रीज हुआ, I भी इंक्रीज हुआ, तो जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहा. दैट्स व्हाई दिस R इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. अगर आप वोल्टेज डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए थी, बट एट द सेम टाइम जब V कम करोगे करंट भी कम होगा, जब करंट भी कम होगी V भी कम होगा, तो जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आएगा. चाहे V ज्यादा होगा रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि एट द सेम टाइम करंट भी ज्यादा होगा तो रेशियो कांस्टेंट आएगा. अगर V कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए थी, बट एट द सेम टाइम करंट भी कम होगी, जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा. R हमेशा कांस्टेंट रहेगा. वो R वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है, करंट पे डिपेंड नहीं करती है. R डिपेंड्स अपॉन लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड तीसरा नेचर ऑफ सबस्टेंस means material, and fourth one टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी. इसीलिए जब स्टेटमेंट था उस पे पहले ही हाईलाइट करके मैंने रखा एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे है. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी. दैट्स व्हाई स्टेटमेंट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर. रेजिस्टेंस डिपेंड करता है चार फैक्टर्स पे, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ सबस्टेंस, मटेरियल. फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है. इफ वी अप्लाई टेंशन टू दिस कंडक्टर दिस विल elongate. अगर ये लेंथ L है एंड दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, अगर मैं
इस लेंथ, अगर मैं इस कंडक्टर को इलोंगेट करूं, स्ट्रेच करूं, तो जब ये स्ट्रेच हो जाए, example, this is L1, this is A1, this will become L2, and the area of cross section A2, the length is less, the area of cross section is more. When we elongate the conductor, the length will become more, but at the same time this area of cross section will decrease. अगर आप यहाँ देखोगे L2, length of this conductor, length of the stretched conductor is greater than the original length, but at the same time this A2 is less than A1, क्योंकि अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा था, लेंथ कम थी. जब मैंने स्ट्रेच किया लेंथ ज्यादा हुई, बट एट द सेम टाइम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ. सो पहले किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस लेंथ पे. यहां से करंट आनी है और यहां से जानी है. जब करंट आएगी तो इस कंडक्टर में उसको रेजिस्टेंस होगी. अगर अब वो करंट इसमें आएगी और यहां से जाएगी, यहां से ये यहां पे करंट आएगी, इसको फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल जाना है. यहां से करंट को बहुत सारी लेंथ चलनी है, तो यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रुकावट ज्यादा आएगी और यहां पे रुकावट कम आएगी, क्योंकि यहां पे कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है करंट को और यहां पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है. इट मींस दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. जितनी लेंथ कवर करनी है करंट को, जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रुकावट आएगी करंट को. जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी कम लेंथ उतनी कम रेजिस्टेंस. पहली इक्वेशन. एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. देखो लेंथ ज्यादा है, L2 ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है. लेंथ कम है, रेजिस्टेंस भी कम है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है. इट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी, और जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतनी कम लेंथ होगी और उतनी कम रेजिस्टेंस होगी. तो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, डिपेंड्स अपॉन लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर लेंथ ज्यादा हो जाएगी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी. नेम दिस इक्वेशन सेकंड. Two equations. Now combine these two equations. We get R is directly proportional to L, पहली इक्वेशन. R is inversely proportional to area of cross section, दूसरी इक्वेशन. जब कंबाइन करोगे R is directly proportional to L and inversely proportional to area of cross section. प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है. R यहां पे इज इक्वल और एक कांस्टेंट आएगा इनटू L डिवाइड बाय A, एंड दैट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय दिस रो L by A. This is the expression. This rho is known as specific resistance. This rho is resistance. But specific resistance. और ये जो रो है इसका दूसरा नाम है resistivity. Resistance directly proportional to length पे, length increase, resistance increase, length decrease, resistance decrease. रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए. यहां पे इक्वलिटी की साइन आएगी और एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम रो और उस रो से डिनोट करते हैं, एंड दैट रो इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अब जो ये फॉर्मूला आई है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, पहला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, दूसरा. अब रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किस पे? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रो, रेजिस्टिविटी. रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रो, रेजिस्टिविटी. बट ये जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सबस्टेंस पे और टेम्परेचर पे. जब रेजिस्टेंस डिपेंड करती है रो पे, रो करता है डिपेंड नेचर ऑफ सबस्टेंस, मटेरियल एंड टेम्परेचर पे. अगर मटेरियल अच्छा होगा, मतलब गुड कंडक्टर. अगर मटेरियल अच्छा होगा मतलब गुड कंडक्टर होगा. मटेरियल अच्छा है, मटेरियल नेचर ऑफ सब्सटेंस अच्छा है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, वही मतलब मटेरियल अच्छा होगा, गुड कंडक्टर होगा.
तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये जो स्पेसिफिक, ये भी रेजिस्टेंस है, रुकावट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। मटेरियल अच्छा है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी। जब रेजिस्टिविटी कम होगी तो डिपेंड डायरेक्टली है, तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। अगर मटेरियल गुड नहीं है, बैड कंडक्टर है, मटेरियल अच्छा नहीं है, तो मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें कम है, मींस रुकावट रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा है, डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। आया समझ? नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल। लास्ट है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा, मींस रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। जब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, डायरेक्टली है, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। न्यूमेरिकल, a weir of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length. The resistance of stretched weir would be, numerical है, let's assume a conductor of length L and area of cross section A1 L1. Assume a conductor of length L1, area of cross section A1. A weir of resistance 4 ohm, resistance is 4 ohm, is stretched. Now this weir is stretched so that stretched to twice its original length. This is L2 is equal twice of L1, twice its original length. The resistance of stretched wire, इसकी resistance 4 ohm है, length L1 है, area of cross section A1 है, इसकी length L2, according to question L2 is twice of its original length L1 and area of cross section is A2. When we stretch the weir, the volume of a conductor, the volume will remain constant. Volume is equal to area of cross section into length. V1 is equal to A1 L1, V2 is equal to A2 L2. Volume is constant, means A1 L1 is equal to A2 L2, must be equal to A1 is A1, L1 is equal to A2, L2 twice of L1, L1 cancel, A1 is equal to twice of A2, means A1 is twice of A2. We know that R resistance is equal to rho resistivity into length divided by area of cross section. For the conductor, first R1 is equal to rho 1 L1 A1. For conductors 2, R2 is equal to rho 2 L2 A2. But the conductor is same, the material is same, means rho 1 is equal to rho 2. Means rho 1 is equal to rho 2. Both are same. This is R1 is 4 ohm. We have to calculate R2. R1 is equal to 4 ohm. R2 is equal to rho L2 by A2. But we know that L2 is twice of L1. We will replace L2 by 2L1. And we know that A1 is twice of A2. A2 is equal to A1 divided by 2. Replace A2 by A1 by A2. R2 will become, this 2 will come up, that is 2 rho 2L1 divided by A1. 2 2s are 4. This will become 4. 4 times rho L1 A1.
R2 will become 4 times rho L1 by A1. But this rho L1 by A1, rho L1 by A1 is equal to R1, which is equal to 4 ohm. Means from we will substitute 4 ohm by, means this is equal to 4 ohm. Means R2 is equal to 4 4s are 16 ohm. Option A is 8 ohm, cancel. Option C is 2 ohm, cancel. Option D is 4 ohm, cancel. And option B is 16 ohm. 16 ohm, and the correct answer is 16 ohm. R2 is 16 ohm. Correct answer is B. Thank you. This was all about Ohm's law. Stay connected with us. May Almighty Allah bless us and protect us from devil eyes. Ameen.